Hello students, I am Navina Tariq. Today we will discuss the chapter in the Kingdom of Fools, which is the fourth chapter from a supplementary reader. Over here we will discuss a kingdom which had many foolish people. The king and the ministers all were fools, and the way they used to run the government of that place, the way they used to rule over the entire city was a very peculiar and a foolish way. So we'll read about the foolishness of the people of that kingdom. Okay, move over to the chapter. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in the story? What happens to them? ऐसा माना जाता है कि जो फुलिश होता है मीन्स जो बेवकूफ़ होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है एंड ओनली वेरी वाइज पीपल मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा समझदार और इंटेलेक्चुअल लोग हैं सिर्फ वही लोग उन्हें मैनेज कर सकते हैं. सो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे that who are the fools in this story, how they behave foolishly and what happens to them. In the kingdom of fools, both the king and ministers were idiots. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night till the fields and run the business only after dark and go to bed as soon as the sun came up. Now, in the kingdom of fools, the ministers and the kings were all idiots. They were all foolish. वो अपना किंगडम को उस तरह से नहीं रन करना चाहते थे जैसे और राजा महाराजा अपने किंगडम को रन करते हैं. वो सोचते थे कि वो कुछ डिफरेंट करें, कुछ हटके करें. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो दिन को रात में बदल देंगे और रात को दिन में. मतलब जो भी काम हम दिन में करते हैं वो सारा काम वो लोग रात के टाइम पे करेंगे एंड द डे टाइम दे विल यूटिलाइज एज द टाइम फॉर रेस्टिंग एंड द टाइम फॉर स्लीपिंग. उन्होंने सबको ऑर्डर किया कि वो रात में जगेंगे टिल दे फील्ड्स मीन्स अपनी खेतों को देखेंगे, उगाएंगे उसमें अनाज. रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क एंड एवरीवन विल रन द बिजनेस when it is the night time. So means all the farmers will work in the night and the businessmen will also work in the night, and the daytime they will go to bed and they will sleep. And as soon as the sun came up, मतलब जैसे ही सूरज उगता है वो लोग सब रेस्ट करने जाएंगे. जैसे हम लोग रात में रेस्ट करते हैं, they will rest in the day and they will work in the night. Anyone who disobeyed would be punished with death. और कोई भी अगर उनकी बात नहीं मानेगा so the person will be punished to death. The people did as they were told for fear of death. लोगों ने वही काम किया जैसा उनसे कहा जाता था क्योंकि सबको डर था कि वो लोग उन्हें पनिशमेंट देंगे. That was the punishment with death if they will disobey the orders. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Now, एक दिन एक गुरु और एक उसका डिसाइपल मीन्स उनका चेला एक उस सिटी में आए. द सिटी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल सिटी. पर जैसे ही वो आए सिटी में उन्होंने देखा कि सब लोग सो रहे थे. नॉट अ माउस स्टरिंग मतलब एक भी चूहा तक नहीं था वहाँ पे जो इधर से उधर भाग रहा हो या दिखाई दे रहा हो. Everyone was asleep. Even the cattle had been taught to sleep by day. Now cattle are the group of animals. Now animals that live in group जैसे गाय, बकरी, sheep, ये goats, all these animals were also taught to be sleeping in the day. तो वो लोग भी दिन में सोते थे. So animals also developed the habit of sleeping in the day and getting up and roaming about in the night. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. वो लोग इवनिंग तक वेट करते रहे और एंड दे वर वंडरिंग मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे, सरप्राइज थे कि रात में ऐसा क्यों, दिन में इतना ज़्यादा सन्नाटा क्यों है. जब वो लोग इवनिंग तक वहाँ पे रहे तो उन्होंने देखा कि व्हेन द सन वेंट डाउन एंड इट वाज इवनिंग टाइम, एवरीवन केम आउट फ्रॉम द हाउसेज एंड स्टार्टेड ऑफ विद द बिजनेस. जैसे हम लोग मॉर्निंग में जैसे सूरज उगता है तो लोग अपने घरों से निकलते हैं. दे स्टार्ट ऑफ विद द डेली वर्क, दे स्टार्ट गोइंग टू ऑफिस, दे स्टार्ट ऑफ विद द बिजनेस, दे ओपन द शॉप्स एक्सेट्रा. उसी तरह से जैसे इवनिंग हुई दे स्टार्टेड विद द डेली वर्क, दैट इज़ द नाइटली वर्क. The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dodo. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dodo.
The Guru and the disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. Now these two men, the Guru and the disciple, they were very hungry क्योंकि वो लोग मॉर्निंग में यहाँ पे आ गए थे and throughout the day they never got anything to eat because everything was closed. There was not even a single person outside. Now it was the evening time and the shops were open. उन्होंने सोचा कि वो लोग जाके कुछ ग्रॉसरीज ख़रीदें, मीन्स कुछ राशन का, कुछ खाने का सामान ख़रीदें. टू द अस्टॉनिशमेंट मीन्स टू द सरप्राइज़, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वहाँ पे सारी चीज़ें जो थी वो एक ही अमाउंट में बिकती थी. दैट वाज अ डूडो. नाउ DU डूडो मीन्स द करेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. उस जगह की करेंसी को बोलते थे डूडो. हर चीज़ एक सिंगल रुपी मतलब एक सिंगल डूडो में बिकती थी. चाहे वो आप कितने भी किलो राइस ले लो या एक बंच ऑफ बनानास ले लो, जितना भी आपको सामान लेना है, चाहे जितनी भी क्वांटिटी में लेना है, एवरीथिंग विल कॉस्ट वन डूडो. नाउ सीइंग दिस द गुरु एंड डिसाइपल वर वेरी हैप्पी. उन्होंने सोचा कि वो कितना भी सारा खाने पीने का सामान ले सकते हैं एंड एवरीथिंग विल कॉस्ट वन डूडो. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. There is no place for us, let's go, he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. The Guru said, they are all fools. This won't last very long. You can't tell what they'll do to you next. Now, जब वो लोग उन लोगों ने खाना खाया और उन लोगों ने रेस्ट किया, उस टाइम गुरु वॉज अ वेरी वाइज मैन, मतलब बहुत समझदार था गुरु. ही रियलाइज, उसने रियलाइज़ किया दैट दिस फुल एंटायर किंगडम, दिस इज़ अ किंगडम ऑफ फूल्स. मीन्स ऑल फुलिश पीपल स्टे ओवर हियर, दे आर ऑल इडियट्स. सो यहाँ पे ज़्यादा दिन इस जगह पर रहना विल नॉट बी गुड फॉर देम, उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा. दे विल फॉल इन टू ट्रबल बिकॉज ये लोग बेवकूफ़ हैं, ये लोग कब क्या कर दें तुम्हारे साथ, यू नेवर नो. सो इट इज़ बेटर कि हम ये जगह छोड़ के चले जाएं. वो अपने डिसाइपल से कहता है कि चलो हम यहाँ से चलें. बट डिसाइपल वॉज अ वेरी ग्रीडी मैन. He thought that this entire place is very cheap and all he wanted was cheap and good food. मतलब वो चाहता था बहुत अच्छा और सस्ता खाना. So he became a very greedy person and due to his temptation, अपनी temptation के चक्कर में वो वहाँ रुक गया और उसने डिसाइड किया कि वो उसी किंगडम में रहेगा. कौन रहेगा? फूल. उसका जो डिसाइपल था, ही वॉज ऑल्सो फुलिश एंड ही वॉज ऑल्सो अ वेरी ग्रीडी मैन. तो उसने सोचा कि मैं यहीं रहूँगा. बट गुरु advised him to move away with him, but he did not accepted his advice और उसने वहीं रहने का फैसला किया. But the disciple wouldn't listen to the guru's wisdom. Disciple ने अपने गुरु की समझदारी, wisdom means समझदारी को नहीं माना and he wanted to stay. The guru finally gave up and said, do you want do what you want, I'm going, and left. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee, rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. Now, गुरु वहाँ से चला गया और डिसाइपल वहीं रह गया उसी किंगडम में. और उसने वहाँ पे क्या किया? He kept on eating and filling his stomach. He ate things like banana, ghee, rice, wheat and grew very fat like a street side bull. मतलब जो रास्ते में हम लोगों को बुल दिखाई देते हैं, ऐसे बहुत heavy, massive सा बुल बन गया. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and he was carrying out his loot. The wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his Asian trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. Now this is one example of foolishness. एक दिन क्या हुआ? दिन के टाइम में a thief broke into merchant's house. अब दिन में क्यों चोर आया? बिकॉज वो लोग दिन में सब लोग सोते थे. अपन के यहाँ चोरी कब होती है? रात में होती है. बिकॉज व्हेन एवरीवन इज स्लीप एंड व्हेन एवरीवन इज रेस्टिंग, उस टाइम चोरों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है घरों में घुस के चोरी करने की. अब क्योंकि यहाँ पे दिन में सोते थे सब लोग, सो द थीव्स ऑल्सो दे ऑल्सो कैरी ऑन देयर वर्क इन द डे टाइम. तो दिन के टाइम में एक मर्चेंट के घर में, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, उसके घर में एक थीफ आया. He had made a hole in the wall and sneaked in. उसने दीवार में एक छेद बना लिया था और उस छेद से वो घर के अंदर घुसा.
जब वो अपना लूट मीन्स जब वो सारी चीज़ें चुरा रहा था, उसी टाइम उस घर की जो दीवार थी दैट वाज वेरी ओल्ड एंड इट कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, मतलब वो पूरी दीवार टूट के उस चोर के सर पे गिर गई एंड द थीफ वाज किल्ड ऑन द वेरी स्पॉट एंड द थीफ मर गया। नाउ थीफ का भाई जो था वो उसी टाइम किंग के पास गया और किंग से कंप्लेन करी, योर हाइनेस, नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, योर हाइनेस इन द इन्वर्टेड कॉमर्स से लेकर इनजस्टिस तक, ये पूरा पैराग्राफ आपको अंडरलाइन करना है, फ्रॉम योर हाइनेस टिल इनजस्टिस। योर हाइनेस, when my brother was pursuing his ancient trade, मतलब वो किंग से कहता है योर हाइनेस, जब मेरा भाई जो कि चोर था वो अपनी एशियंट ट्रेड, एशियन मीन्स पुश्तैनी काम को पूरा कर रहा था, उसका पुश्तैनी काम क्या था, चोरी करना। सो वो अपने जब एशियन ट्रेड को परस्यू मीन्स ट्राइंग टू अकम्प्लिश, पूरा कर रहा था, तभी उसके ऊपर एक दीवार गिर गई और वो मर गया। अब इसमें किसकी गलती है, मर्चेंट की। वो कहता है द मर्चेंट इज़ टू बी ब्लेम्ड मीन्स दिस इज़ मर्चेंट्स फॉल्ट, ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी जो टूटती नहीं। You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. Now he is requesting the king कि आप wrongdoer मतलब जो गलत करने वाला है उसे पनिश करो। Now कौन है यहाँ पे गलत, मर्चेंट, क्योंकि उसने कमज़ोर दीवार बनाई थी and that wall fell on the thief, तो जिससे थीफ की जान चली गई। तो इसमें किसकी गलती है, मर्चेंट की। सो उस मर्चेंट को पनिश करो और कंपनसेट द फैमिली, और उनकी फैमिली से पैसा मांगो इस इनजस्टिस के लिए। इनजस्टिस मीन्स बिल्डिंग अ वीक वॉल विच फेल ऑन द थीफ एंड द थीफ डाइड। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। अब किंग जो कि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा फुलिश था, उसने बोला जस्टिस विल बी डन, मतलब जस्टिस होगी, सही होगा, जो गलत है उसको पनिशमेंट मिलेगी, जो सही है उसे जस्टिस मिलेगा। और उसने उसी वक्त ओनर ऑफ द हाउस मतलब मर्चेंट को बुलाया अपने महल में, टू समन मीन्स उसे पूछताछ करने के लिए। नाउ नेक्स्ट पेज, व्हेन द मर्चेंट अराइव द किंग क्वेश्चन हिम व्हाट्स योर नेम, सच एंड सच योर हाइनेस। जब मर्चेंट वहाँ आया तो किंग ने उसका नाम पूछा। नाम इस स्टोरी में मेंशन नहीं है, तो सच एंड सच मतलब जो भी उसका नाम हो उसने बताया। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, किंग उससे पूछता है कि क्या तुम घर पे थे जब उस थीफ ने जो कि अब मर गया है बर्गल्ड योर हाउस, BURGLED, बर्गल्ड मीन्स चोरी करना। ओके स्टूडेंट्स, सो वेन एवर यू आर वॉचिंग एनी वीडियो ऑलवेज कैरी योर बुक विथ यू, अपनी बुक को अपने साथ रखा करो, so that you can write the meaning of the difficult words that I am telling you over there with pencil. So इसका meaning लिखो, burgled means चोरी करना, BURGLED, burgled, and burglar, BURLGUR, burglar means चोर and burgled means चोरी करना। So क्या तुम घर पे थे जब इस आदमी ने तुम्हारा घर पे चोरी करी? Yes, my lord, he broke in and the wall was weak, it fell on him. The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. अब किंग बोलता है कि तुमने इस आदमी के भाई जो थीफ था उसकी तुमने जान ले ली बिकॉज योर वॉल वॉज वेरी वीक, सो यू हैव टेकन अवे अ मैन्स लाइफ, तुमने एक इंसान की जान ली है, सो वी विल हैव टू पनिश यू, तो तुमको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. Now, merchant कहता है कि Lord, king से कहता है कि king मेरी गलती नहीं है, because I did not make the wall. जिस इंसान ने ये दीवार बनाई है, it was his fault that he did not build the wall properly and the wall fell. So उसको punishment दो जिसने ये दीवार बनाई है. That means जिस कंस्ट्रक्टर ने ये दीवार बनाई है, जिस मिस्त्री ने ये दीवार बनाई है। Who is that? My lord, this wall was built in my father's time. I don't know the man. He is an old man now. He lives nearby. वो बोलता है ये दीवार मेरे फादर के टाइम की बनी है और जिस इंसान ने ये दीवार बनाई थी he has become very old और वो आसपास ही कहीं रहता है। The king sent our messengers to bring in the bricklayer who has built the wall. They brought him, tied hand and foot.
नाउ किंग ने अपने मैसेंजर्स, अपने सिपाहियों को भेजा और वो ब्रिक लेयर, ब्रिक मतलब ईंट और लेयर मतलब सेट करना, मतलब जिसने वो ईंटों से वो दीवार बनाई थी उसको वो लोग लेके आए विथ हिज हैंड्स एंड हिज फुट टाइड विथ अ रोप. You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. अब किंग उस ब्रिक लेयर से, मतलब उस लेबर से पूछता है कि क्या तुमने ये दीवार बनाई थी इसके फादर के टाइम पे? एंड ही सेज yes, I built it. What kind of a wall is that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You've murdered him. We have to punish you by death. नाउ किंग उस ब्रिक लेयर से, उस लेबर से ये कहता है कि तुमने ये किस तरह की दीवार बनाई थी. You made such a weak wall that it fell on the poor man. The poor man means thief. मतलब एक तो वो चोर था, उसने उसके घर चोरी करने आया और किंग ही उसको बेचारा कह रहा है, poor man कह रहा है. That you killed this man, you have murdered him and you will be punished by death. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give orders. It's true I built this wall and it was no good, but that was because of my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down the street all day with her anklets jingling. I couldn't keep my eyes on my mind or on the wall I was building. You must get rid the dancing girl. You must get the dancing girl. I know where she lives. Now, इससे पहले कि किंग ऑर्डर करते और एग्जीक्यूशन मीन्स जो उसका मर्डर था, उसने मर्डर किया था तो उसको डेथ का पनिशमेंट देना था, तो उस पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करते मीन्स उसको आगे बढ़ाते हुए उसको पनिशमेंट देते, सज़ा देते, वो मौत की सज़ा देते. उससे पहले उस ब्रिक लेयर ने एक प्लीट मतलब एक रिक्वेस्ट करी किंग से दैट इट इज़ नॉट माई फॉल्ट. वो ब्रिक लेयर कहता है इट इज़ नॉट माई फॉल्ट बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट. मतलब मेरा दिमाग, जब मैं वॉल बना रहा था तो मेरा दिमाग उस काम में नहीं था, बिकॉज आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स. उसी टाइम एक लड़की जो कि एक डांसर थी, वो उस स्ट्रीट मतलब उस गली से बार बार गुज़र रही थी, जाती थी गली में, फिर वापस चली जाती थी, फिर वापस जाती थी, और वो पायल पहनी थी, एंकलेट्स, एंड हर एंकलेट्स वो जिंगलिंग. नाउ जिंगलिंग मीन्स झनझनाहट की आवाज़, जो एंकलेट्स पायल में से छन छन की आवाज़ होती है, उस आवाज़ को बोलते हैं जिंगलिंग. हर एंकलेट्स वो जिंगलिंग एंड शी वॉज अ डांसिंग गर्ल. तो मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया उस लड़की की तरफ और मेरा दिमाग उस लड़की की तरफ चला गया, तो मैं अच्छी दीवार नहीं बना पाया. So this is not my fault, this is the dancing girl, the dancer's fault, जो बार बार वहाँ से निकल रही थी और मुझे अट्रैक्ट कर रही थी. तो वो कहता है मुझे पता है वो कहाँ रहती है, उसको पनिशमेंट दो बिकॉज इट वॉज हर फॉल्ट कि वो क्यों बार बार सामने से निकल रही थी एंड शी वॉज अट्रैक्टिंग मी एंड आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द वॉल दैट आई वॉज बिल्डिंग. You're right, the case deepens. We must look into it. It's not easy to judge such complicated cases. Let's get the dancer wherever she is. Now, King कहता है कि ये केस और ज़्यादा deepen means ये केस और गहरा हो गया है. This case is very complicated. इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस को जज करना इतना ईजी नहीं होता है. दिस इज़ वॉट द किंग इज सेइंग. किंग कह रहा है ये चीज़ें. सो लेट्स गेट दैट डांसर वेरेवर शी इज़. अब उस डांसर को बुलाओ जहाँ भी है, उसको डेथ की पनिशमेंट देंगे कि वो बार बार वहाँ से क्यों निकली. द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमन, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट. नाउ वो डांसिंग गर्ल इतने सालों में बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो गई थी एंड शी केम ट्रेम्बलिंग मीन्स काँपती हुई वो वहाँ आई. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? अब किंग डांसिंग गर्ल से पूछता है कि बहुत साल पहले क्या तुम इस गली से बार बार निकली थी एंड दिस पुअर मैन, यू सॉ दिस पुअर मैन बिल्डिंग द वॉल? Yes, my lord, I remember it very well. So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. वो बोलती है हाँ लॉर्ड, मैं वहाँ से बार बार निकली थी. And of course she went with wearing anklets and its anklets were jingling and that's why this man was distracted और उसने एक बहुत ही कमज़ोर सी दीवार बनाई. It is fallen on a poor burglar and killed him. वो जो दीवार बनी वो इतनी कमज़ोर बनी कि वो उस पुअर बर्गलर मीन्स चोर, उस पर गिर गई और वो मर गया. You've killed an innocent man, you will be punished. अब राजा कहता है, किंग कहता है कि तुम्हारी वजह से एक पुअर मैन मरा
तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी। किसको मिलेगी पनिशमेंट? डांसिंग गर्ल को। She thought for a minute and said, "My lord, wait. I know why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to the house a dozen times." नाउ वो डांसिंग गर्ल अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करती है और उन्हें पूरी स्टोरी बताती है कि व्हाट वाज द स्टोरी एंड व्हाई शी वाज गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट सो मैनी टाइम्स। वो बोलती है कि उसने गोल्ड स्मिथ मीन्स सोनार को अपने लिए ज्वेलरी बनाने के लिए बोला था। नाउ दैट गोल्ड स्मिथ मीन्स वो सोनार इतना लेज़ी स्काउंड्रल मीन्स वो बहुत ज़्यादा लेज़ी था, स्काउंड्रल मीन्स बदमाश था। एंड ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज़ेस, और वो जो जेवर था, ज्वेलरी थी, वो टाइम पे नहीं बना रहा था और वो बार बार मुझसे बोलता था कि अब आओ, बाद में आओ, फिर दे दूँगा। सो ज्वेलरी लेने के लिए मुझको बार बार उस रोड से, उस गली से गुजरना पड़ता था। सो शी मेड एन एक्सक्यूज़ एंड शी सेड दैट इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट इज़ द गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट who was so lazy that he used to make me turn up many times down the street to get the jewelry back, and because of the jewelry I had to go in that street so many times, and that was the reason कि उस bricklayer ने मुझको उस टाइम पे देखा और वो अट्रैक्ट हुआ। That was when the bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It is the damn goldsmith's fault. अब वो बोलती है, it is not my fault. It is the goldsmith's fault. उसकी वजह से मैं बार बार उस गली से जाती थी। Poor thing. She is absolutely right. अब किंग कहते हैं, हाँ poor thing. Poor thing किसे कहते हैं? डांसिंग गर्ल को। That this girl is actually innocent. मतलब किंग बोलता है ये लड़की की कोई गलती नहीं है। It is, अब किसकी गलती है? गोल्ड स्मिथ की, उस सोनार की, जिसने आलस की वजह से उसको उसकी ज्वेलरी टाइम पे नहीं बना के दी और बार बार उसको उस गली से गुजरना पड़ा। वेइंग द एविडेंस, एविडेंस मीन्स सबूत, और वेइंग मतलब नापना, तोलना। तो किंग को लगता था कि वो एक बहुत ही ज़्यादा समझदार, बहुत ही ज़्यादा डिसिसिव इंसान है। डिसिसिव मीन्स जो बहुत जल्दी डिसीजन लेता है, बहुत अच्छे डिसीजन लेता है, और उसका जजमेंट, उसका जो जस्टिस देने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। तो सबूतों को तोल रहा था, और सारे सबूत तोलने के बाद उसको ये रियलाइज़ हुआ कि गलती किसी की नहीं है, गलती है गोल्ड स्मिथ की, मतलब सोनार की। वी गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, और अब वो कहता है हम लोगों को रियल कल्प्रिट मिल गया। कल्प्रिट मीन्स दोषी मिला है फाइनली। Get the goldsmith wherever he is building at once. The king's bailiffs reached for the goldsmith who were hiding in the corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. King के bailiffs means जो उनके सेना थी, सिपाही थे, वो गोल्डस्मिथ की तलाश में गए, who was in his shop, जो अपनी दुकान पे बैठा था। जब उसने ये सारी एक्यूजेशन मतलब इल्ज़ाम, इल्ज़ाम सुने अपने ख़िलाफ़, तब उसने अपनी स्टोरी बताई कि एक्चुअली वो जो ज्वेलरी उसने बनाई थी डांसिंग गर्ल के लिए, वो ज्वेलरी टाइम पे बना के क्यों नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से बार बार द डांसिंग गर्ल यूज्ड टू कम टू द स्ट्रीट्स। सो ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल एंड ही नरेटेड इट स्टोरी। ही सेड, वो किंग से कहता है गोल्डस्मिथ, माई लॉर्ड, ही सेड, I am a poor goldsmith. It's true I have made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before. I finished the rich merchant's order. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. अब वो अपनी स्टोरी सुना के अपनी एक्सक्यूज़ देता है। He says that I am a very poor goldsmith, and yes, it is my fault that I was not able to make the dancing girl's jewelry on time, and that was the reason the dancing girl used to come to my shop many times a day. But मैंने उस dancing girl की ज्वेलरी टाइम पे इसलिए नहीं बनाई क्योंकि एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर था मेरे पास, उनके यहाँ एक वेडिंग थी और वेडिंग पे मुझे उनकी ज्वेलरी बना के देनी थी, और बिकॉज़ वो मर्चेंट बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, सो दे आर वेरी इम्पेशेंट, मतलब जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है उनके पास पेशेंस नहीं होता, सब्र नहीं होता, उन्हें अपना ऑर्डर जल्दी से जल्दी चाहिए रहता है। सो दैट वाज द रीज़न आई वाज नॉट एबल टू मेक द डांसिंग गर्ल्स ज्वेलरी ऑन टाइम। नाउ द किंग आस्क्स, हु इज़ द रिच मर्चेंट, मतलब किंग पूछता है वो रिच मर्चेंट कौन था
जिसकी वजह से तुम डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी टाइम पे नहीं बना पाए, एंड द डांसिंग गर्ल हैड टू कम वॉक द स्ट्रीट सो मैनी टाइम्स एंड इट डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिक लेयर, और वो बार बार उस गली से निकलती थी तो वो ब्रिक लेयर मीन्स जो वो लेबर था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, एंड ही मेड अ very weak wall, and that wall collapsed on the thief's head and the poor thief died. So he asked कि वो merchant कौन था. The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. उस गोल्डस्मिथ ने उस मर्चेंट का नाम लिया, और वो मर्चेंट और कोई नहीं था, वो मर्चेंट वही था जिसके घर की दीवार कमज़ोर बनी थी और उस थीफ के ऊपर गिर गई थी. सो एक्चुअली वो मर्चेंट कौन था? इस प्रेजेंट मर्चेंट का फादर, मतलब जिसकी दीवार गिरी थी, जिसका घर था, दैट मर्चेंट, उनके फादर थे वो रिच मर्चेंट जिनके घर पे वेडिंग थी और जिनका ज्वेलरी उनको टाइम पे बना के देनी थी. He was rudely summoned back to the court. He arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead, I am innocent." Now the rich merchant comes in crying in the court. मतलब वो महल में आता है रोता हुआ, बोलता है कि मैं नहीं था जिसने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था. He was my father and my father is dead. और उसके फादर मर गए थे. अब now to whom will the king give the blame? मतलब अब राजा किसको सज़ा देगा? Now this we'll discuss in the next video. Thank you.